Hello dear student, this is Sumit Arora welcomes you all in my channel Dr. Sumit Arora. Today we will discuss the pharmacognosy of Rauwolfia. Rauwolfia root, you can see the figure of Rauwolfia. Let's start with Rauwolfia herb belong to the chemical class of indole alkaloid. So this is the first drug from alkaloid category. It belongs to the subclass called as indole alkaloid. Synonym is Rauwolfia serpentina, also called as Indian snake root, छोटा चांद सर्पगंधा. इसी को पगले की दवा एक सिनोनिम के तरीके से भी जाना जाता है. Why it is called as सर्पगंधा छोटा चांद? Because of its figure. And why it is called as पगले की दवा? Because it is used in tranquilizer as an anti-tranquilizing agent. It is act as a tranquilizer, means it is used in neuropsychiatric disorder. Hence, it is called as पगले की दवा. Next is biological source. This Rauwolfia consists of dried roots and rhizomes of Rauwolfia serpentina. So here you have to remember the part is both dried roots as well as the rhizomes. Hence it is called as Rauwolfia root. Family belongs to the family Apocynaceae. Name of the genus is Rauwolfia serpentina. So only three things you have to remember here. First, it is a dried roots and rhizomes. Second, the name of the species is Rauwolfia serpentina. Next is belongs to the family Apocynaceae. इसके बाद में आता है कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन. तो दिस आर द 5 बेसिक कंडीशन और द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ द Rauwolfia. फर्स्ट, इट रिक्वायर हाई ह्यूमिड कंडीशन. सेकंड, इट रिक्वायर क्ले लोमी सॉइल विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस. ऐसे अपन ने क्लो में भी देखे थे कि डीप रिच लोमी सॉइल इज रिक्वायर्ड विद लार्ज कंटेंट ऑफ द ह्यूमस. सिमिलर रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर Rauwolfia also. Here the basic requirement of soil is the soil's pH should be acidic in nature. The temperature in the range of 30 to 38 degrees Celsius for cultivation of the Rauwolfia root. The rainfall required is 250 to 500 centimeter. The drug is mainly collected from the wild plants. After collection, the drug is cut transversely into the convenient sizes and finally it is dried. Let's check or see our flowchart pattern. इट इज़ प्रोपोगेटेड आइदर बाय सीड्स, रूट्स एंड कटिंग्स. ये तीनों पोर्शन को लेके आप उसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं, लेकिन जनरली द प्रोपोगेशन बाय मीन्स ऑफ सीड इज हाईली प्रीफर्ड. आफ्टर दैट द रेट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड इज वेरी स्लो एज वी हैव सीन इन सेन्ना ऑल्सो. तो सेन्ना इज एडमिक्स्ड विद लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड, बट हियर you have to sow the sufficient quantity of the seed because the germination is very slow. Especially the sowing is done in the month of May or at the break of monsoon. The seedlings are then transplanted in the field by keeping a distance of 16 to 30 centimeter. In general, if you are having 1 kg, 5 kg of seeds are required per hectare of the land. Means if you have a land of 1 hectare, then you have to sow the seeds around 5 kg. The plants are then provided for the chemical fertilizers and manures because they are required for the healthy growth of the Rauwolfia roots. The chemical fertilizer which you are utilizing is ammonia, ammonium sulfate and urea, while the manure is also required which is called as bone meal. So these fertilizers and manures are added in the field for the healthy growth of the Rauwolfia. After 3 to years, means when the plants are about 3 to 4 years old, they are uprooted. मतलब 3 से 4 साल ग्रो होने के बाद में प्लांट्स को आपको अपरूट करना है. उसमें अर्दी मैटर जो होगा उसको रिमूव करना है और फाइनली उसको ट्रांसफरली कट करके साइजेस व पीसेस में बनाना है और उसको आपको ड्राई करके पैक करना है. So these are the cultivation, collection and preparation of Rauwolfia. Next is morphology. This Rauwolfia basically contain the root, rhizomes and the stem bark. Here we are dealing with the roots. The length of the root is around 2 to 10 centimeter long. Diameter is 5 to 22 centimeter. The shape is cylindrical and slightly tapering. आपने first page में figure देखा है कि it is cylindrical in shape and it is slightly tapering towards the end or in between. Roots, the outer surface is dull greyish brown while the bark is yellowish brown in color. The order of the root is orderless, taste is bitter and the fracture is short and irregular. These are the external characteristics called as morphology of the Rauwolfia. Followed by microscopy. अगर माइक्रोस्कोपी की बात करें तो दिस इज द फिगर ऑफ टीएस ऑफ Rauwolfia रूट. जनरली जब रूट का टीएस पढ़ते हैं तो आप में 4 चीज़ें रहती है. ऊपर में कॉर्टेक्स, फॉलोड बाय फिलोजम, फिलोडम, उसी को कॉर्टेक्स का पोर्शन कहा गया है. At the bottom it shows the presence of medullary rays which are arranged either biseriate in nature or bicellular or unicellular in nature. So here we will discuss the Rauwolfia root. First, the most important point is that it shows the presence of stratified cork cells. Below the cork cells there is presence of phylodum. ये जो phylodum portion है इसमें parenchymatous cells होते हैं और उस parenchymatous cells में 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. It shows the presence of starch grains and prismatic crystals of calcium oxalate.
एक और मैं क्रिस्टल्स का शेप आपको यहाँ बता रहा हूँ जो अभी फिगर में आपको नहीं दिख रहा है, कॉन्ग्लोमरेट क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर आप स्टैंडर्ड बुक रेफर करते हो तो उसमें ये नाम भी दिया है। कॉन्ग्लोमरेट क्रिस्टल्स जो है ये बहुत कम रूट में मिलते हैं, उसमें से राउल्फिया रूट जो है एक अकेला ऐसा रूट है जो आपके सिलेबस को बिलोंग करता है, जिसमें कॉन्ग्लोमरेट और प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स दोनों होते हैं। जैसे अपन ने सिनेमन बार्क में देखे थे, उसमें एसिकुलर क्रिस्टल्स होता है। सिमिलरली हियर द प्रिज्मेटिक एज वेल एज the conglomerate crystals are there in the parenchymatous cells which is found in the phylloderm region. Followed by this, at the bottom it shows the presence of medullary rays which are biserrate in nature and secondary xylem fossils are there. जनरली हियर जो हाइलम फोर्सन जो है उसके अंदर में एनुलर रिंग्स रहती है, उसी को आपने एनुलर वेसल्स कहना है। अगर वेसल्स जो है या रिंग्स जो है वो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहती है तो उसको स्पाइरल वेसल्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे एनुलर रिंग्स फॉर्म में अरेंज है तो उसको आप क्या बोलोगे, एनुलर वेसल्स आर प्रेजेंट इन दी राउल्फिया रूट। Here it is called as secondary xylem, which is composed of vessels which are lignified wood parenchyma and surrounded by the thick xylem fibers. Whenever the fibers is associated with the vascular bundles, they are named as xylem fibers or the phloem fibers. तो ये चार चीज़ें यहाँ आप ध्यान में रखोगे राउल्फिया के बारे में। उसी के डिस्क्रिप्शन में अपन ने देखा है कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द राउल्फिया रूट कंटेन द कॉर्क्स, फिलोजम, फिलोड्रम, दिस इज द पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स, फॉलोड बाय सेकेंडरी फोलम, सेकेंडरी xylem एंड फाइनली इट इज मेडुलरी रेज। Xylems की बात ऑलरेडी मैंने कर चुका है। Xylem is entirely lignified in nature and usually contain 3 to 6 annual rings, means they contain the annular vessels. The medullary rings contain the starch with the alternate rays of secondary xylem vessels. यहाँ जो मैंने ब्लू लाइन या पिंक और ब्लू लाइन में लिखा है वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको याद रखना है। Here the parenchymatous cells which are present in the phylloderm consist of starch grains as well as prismatic, also called as conglomerate crystals of calcium oxalate. कॉर्क सेल की एक खासियत यहाँ जो मैंने ब्लू लाइन में लिखा है कि कॉर्क सेल्स में अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स रहता है। कैसे याद रखोगे कि द फर्स्ट सेल्स विच आर स्मॉलर एंड रेडियली नैरोअर इन नेचर, दे आर stratified with smaller and radially narrower in nature but unlignified cells, they are alternate with the lignified cells which are larger and radially broader in nature. यानी इसका अरेंजमेंट ऐसा है कि पहले जो सेल्स रहेंगे वो स्मॉलर रहेंगे और रेडियली नैरोअर रहेंगे और अनलिग्निफाइड रहेंगे, उसके बाद में जो सेल्स रहेंगे वो लार्जर रहेंगे, रेडियली ब्रॉडर रहेंगे और लिग्निफाइड रहेंगे। मीन्स दे आर हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक इन्फॉर्मेशन इन दिस वे बिकॉज दे कंटेन द अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लिग्निफाइड एज वेल एज अनलिग्निफाइड सेल्स इन द कॉर्क सेल्स। सो ये उसके यूनिक कैरेक्टर हो सकती है या उसको डायग्नोस्टिक कैरेक्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है xylem vessels, दे आर इलोंगेटेड एंड कंटेन द बॉर्डर पिटेट्स इन नेचर, और बॉर्डर पिट्स बोलते हैं उसको। एक ब्लू लाइन में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ये आपको काम की है, ये एडल्ट्रेंट पहचानने में मदद करेंगे। स्टोन सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा एंड फोलम फाइबर्स, दे आर absent in राउल्फिया रूट, मीन्स राउल्फिया सर्पेंटिना डज नॉट कंटेन दिस थ्री, स्टोन सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा एंड फोलम फाइबर्स। ठीक है, तो स्क्लेरेन्काइमा के स्पीसीज के बेसिस पे उसके एडल्ट्रेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये तीन चार बातें जो है बहुत काम की है। एक एनुलर रिंग्स या एनुलर वेसल्स होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स जो फिलोडम में प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रिज्मेटिक एज वेल एज कॉन्ग्लोमरेट क्रिस्टल्स होते हैं। कॉर्क में अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लिग्निफाइड और अनलिग्निफाइड सेल्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा, फोलेन फाइबर और स्टोन सेल्स इसमें अब्सेंट होता है। नेक्स्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिकॉज इट कंटेन द मिक्सचर ऑफ अल्कोलाइड। As we have already seen, it is belongs to the category of indole alkaloid, but in indole alkaloid the various active constituents are there. For example, it contains 0.7 to 2.4% of total alkaloid. The therapeutically active indole alkaloids are rezerpin and rezercinamine. ये दो वर्ड याद रखोगे आप, रेजरपिन्स और रेजरसिनामिन, ये दोनों इंडोल अल्कोलाइड जो है इसके वजह से ही राउल्फिया रूट की एक्शन मिलती है। तो ये दोनों अल्कोलाइड जो है कैसे बनते हैं, ये ईस्टर्स है। ये एस्टर्स बनते हैं ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड का। आपको मिथाइल रेजरपिन बनाना है, मतलब दीज आर द एस्टर डिराइव्ड फ्रॉम मिथाइल रेजरपिन विथ ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड इन रेजरपिन। तो आपको ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड जो है उसका एस्टर लेना है रेजरपिन में, तो आपका रेजरपिन बनेगा। वैसे ही ट्राईमिथॉक्सी सिनामिक एसिड लेते हो तो आपका बनेगा रेजरसिनामिन। याद रख सकते हो क्योंकि सिनामिन है तो ट्राईमिथॉक्सी सिनामिक एसिड और रेजरपिन है तो ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये दोनों अल्कोलाइड जो है ये ईस्टर्स है। इसके अलावा भी उसमें माइनर अल्कोलाइड्स प्रेजेंट रहते हैं जो काम के है, उसका नाम है अजमालिन, इसके वजह से भी कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। रेजरपाइनिन, राउवोल्फिन, ये जो है ये चार माइनर अल्कोलाइड है। दो अनहाइड्रस बेसिस होते हैं जैसे अपन ने देखे थे डिजिटल, इसमें दो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड होते हैं, सेन्ना में देखे थे दो नैप्थेलिन ग्लाइकोसाइड होते हैं। इसमें दो अनहाइड्रस बेसिस होती है, वो आप याद रखोगे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, उसका नाम है सर्पेंटिन और सर्पेंटिनिन। दिस सर्पेंटिन एंड सर्पेंटिनिन इज द नेम ऑफ स्पीसीज राउल्फिया सर्पेंटिना। वो सर्पेंटिना से दो अनहाइड्रस बेस बनी है, उसका नाम है सर्पेंटिन और सर्पेंटिनिन।
इसके अलावा मैंने ग्रीन लाइन में जो बात लिखा है वो है सेल सस्पेंशन कल्चर की। टिश्यू कल्चर टेक्निक अपन जनरली यूज करते हैं टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो हियर ऑल्सो द प्रिंसिपल अल्कोलाइड ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर, जिससे एक नया अल्कोलाइड तैयार होता, नया सेकेंडरी मेटाबोलाइट तैयार होता, उसका नाम है राउ कैफ्रेसिन और अजमालिन। ये दो वर्ड याद रखोगे, दीज आर द प्रिंसिपल अल्कोलाइड ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर एंड इट इज नॉट ऑफ रूट। अगर आप रूट की बात करते हो तो उसमें प्रिंसिपल अल्कोलाइड जो है वो रेजरपिन और रेजरसिनामिन है, लेकिन उसकी सेल सस्पेंशन कल्चर की बात करते हैं तो इट कंटेन राउ कैफ्रेसिन एंड अजमालिन। दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अल्कोलाइड प्रेजेंट इन द सेल सस्पेंशन कल्चर। लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है एडिशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ अजमालिन। अगर आप सेल कल्चर में इसके एक सब्सटेंस ऐड करते हो अजमालिन, जो माइनर अल्कोलाइड है, तो एक नया फॉर्मेशन ऑफ अल्कोलाइड होता है, उसका नाम है राउ मैकलिन, जो ओरिजिनली रूट्स में नहीं मिलता है आपको। ये चार चीजें बहुत काम की है। एक फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, इट कंटेन द मेजर अल्कोलाइड रेजरपिन एंड रेजरसिनामिन, दे आर द ईस्टर्स। माइनर अल्कोलाइड्स आर आल्सो देयर इन द फॉर्म ऑफ अजमालिन एंड राउल्फिनिन, रेजरपिनिन। अनहाइड्रस बेसेस दो होती है, सर्पेंटिन और सर्पेंटिनिन। इसके सेल सस्पेंशन कल्चर में एक मेजर अल्कोलाइड तैयार होता है, उसका नाम है राउ कैफ्रेसिन और अजमालिन। और यही अजमालिन अगर उसके सेल कल्चर में आप ऐड करते हो तो एक नया अल्कोलाइड तैयार होता है, उसका नाम है राउ मैकलिन। तो ये सारी चीज़ें एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा काम की है, आप याद रख सकते हो। कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि सारी चीज़ें राउ मोल्फिन कैल्फिन ये सब जो है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट अलग अलग से याद करना है, इसलिए मैंने अलग अलग कलर से उसको हाईलाइट किया है। इसके बाद में आते हैं यूजेस। यूजेस में दो यूज जनरली हर बच्चे ने सुने हैं, डिप्लोमा के बच्चे ने भी यही सुना है कि इट इज यूज इन एसेंशियल हाइपरटेंशन एज वेल एज ट्रैंक्विलाइजर, हेंस इट इज कॉल्ड एज पगले की दवा। बट हियर आई विल हाईलाइट मोर यूजेस बिकॉज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर आल्सो प्रेजेंट लाइक अजमालिन, यूहिम्बिन एक्सेट्रा। सो फर्स्ट यूज इज इट इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन। कैसे यूज होता है अपन देखेंगे मैकेनिज्म। सेकंड एज एंटीसाइकोटिक एजेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट एज अ सीडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर यूज होता है। ट्रैंक्विलाइजर यानी ही होता है आपका दो ट्रैंक्विलाइजर होते हैं, एक मेजर ट्रैंक्विलाइजर और एक माइनर ट्रैंक्विलाइजर। तो मेजर ट्रैंक्विलाइजर में आपका आता है साइकोटिक डिसऑर्डर वाले और माइनर ट्रैंक्विलाइजर यानी एंटी एंजाइटी वाले। तो अपना जो ड्रग है ये मेजर ट्रैंक्विलाइजर एजेंट करके यूज होता है। अजमालिन एक अदर अल्कोलाइड जो इसमें माइनर अल्कोलाइड है, उसको यूज कर सकते हैं आप कार्डियक अरिथमिया में और सर्कुलेटरी डिजीज में, इसीलिए यहाँ पे ये यूज को हाईलाइट किया गया है। द अजमालिन मीन्स द माइनर अल्कोलाइड विच इज प्रेजेंट इन राउल्फिया इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया। Next is yohimbine. Yohimbine is used in the treatment of impotency, especially in the patient associated with the diabetic troubles. So these are the 5 major uses. The essential or the important uses are essential hypertension and in tranquilizers. These are the adulterants. They are very important, especially the entrance point of view. These are the 5 major adulterants I have highlighted here. The first is Rauwolfia tetraphylla. It is identified by the presence of uniform cork, abundant sclerites and fibers and absence of रेजरसिनामिन। हाँ, ओरिजिनल ड्रग में अपने स्ट्रेटिफाइड कॉर्क थी, इसमें यूनिफॉर्म कॉर्क रहेंगी। सेकंड, ओरिजिनल ड्रग में अपना रेजरपिन भी होता है, रेजरसिनामिन भी होता है, इसमें रेजरसिनामिन अब्सेंट होगा। तो ये दो डिफरेंस है। राउल्फिया टेट्राफाइला को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है राउल्फिया वोमिटोरिया, जिसको अफ्रीकन राउल्फिया भी कहा जाता है। ये एक सेंटेंस याद रखोगे, अफ्रीकन राउल्फिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज राउल्फिया वोमिटोरिया। It shows the presence of sclerenchyma which is absent in our original Rauwolfia serpentina. So it is identified by the presence of sclerites or sclerenchymatous cells or the stone cells. So the Rauwolfia vomitoria contain 5 discontinued brands of sclerenchyma. It shows the presence of large vessels. Our original drug contain the annular vessels. Third, which is most important, is called as Rauwolfia caphra. इसी को Rauwolfia natalensis भी कहा जाता है। अगर आपको सिर्फ राउल्फिया कैप्रा पता है, राउल्फिया नेटलेंसिस नहीं पता है, तो आपके लिए दिक्कत ये हो सकती है कि राउल्फिया कैप्रा से एक नाम बना हुआ है राउ कैफ्रेसिन। तो राउ कैफ्रेसिन इज द मेजर अल्कोलाइड ऑफ राउल्फिया कैप्रा। इट इज वेल नोन बिकॉज कैप्रा एंड कैफ्रिन दे आर मैचेबल, बट राउल्फिया नेटलेंसिस इज द सिनोनिम ऑफ राउल्फिया कैप्रा, हेंस राउ कैफ्रेसिन इज ऑल्सो द मेजर अल्कोलाइड ऑफ राउल्फिया नेटलेंसिस। तो आप दोनों वर्ड याद रखें तो अच्छा रहेगा। इसमें ओनली कॉर्क सेल्स आर लिग्निफाइड, means there is no sclerenchyma here. Cork cells are lignified, then it is a Rauwolfia caphra. Next is Rauwolfia densiflora. It also contains the sclerenchyma. Other adulterants are Rauwolfia rosea, obscura, volcansii. It lacks the sclerates development. So these are the 5 basic adulterants which are very very much important for the entrance point of view. Next is mechanism of action. तो मेन जो यूज है अपन ने देखे सीडेटिव और ट्रैंक्विलाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेजरपिन, ये बिकॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ कैटेकोलामाइंस होता है। आपका जो हाइपरटेंशन बढ़ता है वो सिंपैथेटिक नर्व फंक्शन की वजह से बढ़ता है। अगर आप कैटेकोलामाइन का फंक्शंस या कैटेकोलामाइन का रिलीज जो है वो रोक देंगे तो कैटेकोलामाइंस या एड्रेनालिन दे आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड फाइनली इट कॉजेज द रोलिंग ऑफ द
lowering of the arterial blood pressure. यहाँ मैंने वही लिखा है रेजरपिन. It depletes the stores of catecholamine and 5-hydroxytryptamine in many organs including brain and adrenal medulla. As we have already seen, adrenal medulla carries the sympathetic nervous system, and sympathetic nervous system enhances the release of adrenaline, which enhances the blood pressure. Thus, by depleting the store of catecholamine, the depression of the sympathetic nervous function takes place, and finally it results in the decreased heart rate and lowering of the ब्लड प्रेशर. तो इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जो एसेंशियल हाइपरटेंशन में बात करते हैं उसमें यूज हो सकता है. तो दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट अबाउट फार्माकोग्नोसी ऑफ राउल्फिया. केमिकल टेस्ट यहाँ इसलिए नहीं लिखे कि ऑल द अल्कोलाइड्स they are identified by their specific chemical test. For example, Dragonoff reagents are there, Mayer's reagents, Hager's reagents and all. So इस तरीके से आप पूरा फार्माकोग्नोसी ऑफ राउल्फिया आप पढ़ सकते हैं. आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा. ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए सबके लिए बनाते रहूँगा ताकि आपको नॉलेज अपडेट हो सके और आसानी से आपको सारी चीज़ें मिल सके. अगर आप बुक परचेस करना चाहते हो तो मेरी बुक परचेस कर सकते हो, फार्माकोग्नोसी ऑफ मेडिसिनल प्लांट बाय SBW पब्लिशर्स, न्यू दिल्ली. डिस्काउंटेड रेट में आपको वहाँ से बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी. अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट. सो एंजॉय योर रीडिंग, हैप्पी रीडिंग. थैंक यू वेरी मच.